الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قرآن کریم فرقان حمید کی جو میں نے 3 مختلف آیات تلاوت کی ہیں، ایک آیت میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے، ایک آیت میں قرآن کریم کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا تذکرہ ہے، اور ایک آیت میں زبردستی کسی کو دین میں داخل نہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ 3 مختلف آیات ہیں، یہ خاص کر آج کل کے سینیریو کے حوالے سے، ایک ججمنٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئی ہے، اس کے جو ہے وہ کنٹیکسٹ میں ہیں یہ آیتیں۔ تو سب سے پہلے تو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ نے آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہم تمام پیغمبروں پر، گزشتہ جتنے بھی انبیاء ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا دین مکمل ہی تبھی ہوتا ہے، ہمارا ایمان مکمل ہی تبھی ہوتا ہے جب ہم گزشتہ انبیاء پر ایمان رکھیں۔ اگر ان پر ایمان نہ رکھیں تو ہمارا ایمان پورا ہوتا ہی نہیں۔ اور جب باری آتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ علیہ السلام پر ایمان رکھنا، اور دوسرا آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا۔ 2 چیزوں پر ایمان ضروری ہے، اگر کوئی ان دونوں چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اور کلیئر کٹ اور 2 + 2 جیسی یہ بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی تذبذب، کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، واضح مسئلہ ہے، کلیئر کٹ مسئلہ ہے، قرآنی آیات سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی بڑی واضح آیات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के आखिरी नबी हैं, खातम हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत का सिलसिला बंद है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, कि हमने आपको तमाम की तमाम मखलूक कायनात की तरफ रसूल बना करके भेजा है। प्यारे पैगंबर से अल्लाह ने ऐलान करवाया। तो आपकी नबूवत आलमी है। पहले जो अंबिया थे उनकी नबूवत एक इलाके के लिए, एक जमाने के लिए, एक मखसूस खित्ते के लिए, एक मखसूस कौम के लिए। वैला आदिन अखाहुम हूदा वैला समूद अखाहुम सालिहा, कौम आद की तरफ, कौम समूद की तरफ, कौमों की तरफ, खित्तों की तरफ। वैला मदियन अखाहुम शुआइबा, मदियन की तरफ इलाकों का जिक्र है, असहाबुल ऐका का जिक्र है। तो मखसूस खित्ते, मखसूस इलाके, मखसूस कौमें, मखसूस लोग, मखसूस जमाना, ये जो है वो नबूवत का एक तसलसल था। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत आई तो अल्लाह ने इस चीज को बहुत ज्यादा कह लें कि एक्सटेंड कर दिया। आपका इलाका भी क़यामत तक, जितने इलाके होंगे, जमाना भी क़यामत तक, मखलूक भी सारी, उसमें इंसान भी दाखिल, जिन्नात भी दाखिल। क्या आप जिन्नात के भी नबी हैं, इंसानों के भी नबी हैं? आप इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, हर मखलूक के आप नबी हैं। तो ये तो बड़ा वाज़ेह सा मैसेज दिया है हमें कुरान, इसमें तो कोई इबाहम वाली बात ही नहीं है कि हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई बंदा क्लेम करता है नबूवत का तो वो झूठा है। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, नहीं, हम आंखें बंद करके कह सकते हैं झूठा है, बात खत्म। तो ये हमारा एक बुनियादी अकीदा है, इसको बुनियादी ईमान का हिस्सा है, जुज़्व लाजिम है। और सहाबा इकराम ने इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दी हैं। उनको जिंदा आग में डाला गया है, उनको सूली लटकाया गया है, जंगें हुई हैं इसी के लिए, जंग यमामा हुई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बाकायदा जंग की है मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, जो क्लेम करता था नबूवत का, कि ये तो हो ही नहीं सकता। 1200 सहाबा शहीद हुए सिर्फ इसी मसले की खातिर, अगर कोई छोटा सा मसला, और उनमें से बदरी सहाबी 100 के करीब बदरी सहाबी, और ये जो 1200 हुए अक्सर हुफ़ाज़ क़ुर्रा सहाबी शहीद हुए, जबकि उस वक़्त क़ुर्रा और हुफ़ाज़ की बड़ी सख्त जरूरत थी। तो इनकी शहादतें, अगर खत्म नबूवत का कोई ऐसा मामूली सा आम सा कोई मसला होता तो इनकी शहादतें ना होती। मुसलमा कज़्ज़ाब ने आप अलैहिस्सलाम को ऑफर की कि आधा इलाका आप ले लें, आधा मैं ले लूं। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल था, इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जंग की। और इसी तरह से सहाबा ने जो उसूली हैं, आग में कूदना, ये सारा का सारा हुआ सिर्फ किस लिए कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद हमें कोई नबी कबूल नहीं है, नबी बनकर कोई नहीं आएगा। पहले जो आ चुके सो आ चुके, मबूस हो चुके सो हो चुके, आपके बाद नहीं। कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर के आएंगे, उम्मती बनकर के आएंगे। उनको नबूवत पहले मिल चुकी, अब किसी को नबूवत दरवाजा बंद। वो ताज आप अलैहिस्सलाम को पहना दिया गया, वो एजाज आप अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना है, और फिर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में यह कानून पास हो चुका है कि जो क्लेम करता है और उस क्लेमर के जो मानने वाले हैं वो सारे के सारे दायरे इस्लाम से खारिज हैं, वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में यह हुआ कि एक झूठा नबी वो उठा था, उसने दावा किया था कि मैं नबी हूं, गुलाम अहमद कादियानी, उसने दावा किया था। तो इस पर कुर्बानियां लगी हैं। साहबा का दौर तो बड़ा
1400 साल पहले की बात है, ये तो 1953 की बात है जब 10,000 शहादतें लाहौर में हुई थी, सिर्फ इसी खत्म नबूवत के मसला पर। ये तो पुरानी बात नहीं है, लोगों ने जाने दिए इस मसले पर कि इसमें समझौता नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा आम को मसले की इख्तलाफ नहीं है कि दो मसलों का इख्तलाफ है, नहीं, मसलकों का इख्तलाफ अलग चीज है, उसमें एतकादात का इख्तलाफ नहीं है, उसमें नबूवत पर कोई डाके नहीं है। मसालिक का इख्तलाफ बेसिकली हर मसलक ये समझता है कि जिस रास्ते को मैं अपना रहा हूं, जो तालीमात मैं ले रहा हूं, ये ठीक है। हर मसलक का क्लेम यही है कि मैं किसी तरह से आप अलैहिस्सलाम के सुन्नत तरीके पर चलूं। किसी मसलक का यह क्लेम नहीं है कि हम नई शरीयत निकालें। यहां पे क्या क्लेम है? नई शरीयत। गुलाम अहमद कादियानी माज़ल्ला रसूलुल्लाह के मुकाबले में उनके जो मानने वाले मलऊन हैं वो सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक बने हुए हैं। उनको सहाबा कहलवाता है, बीवियों को उम्महात कहलवाता है, अपने मानने वालों को मोमिन कहलाता है, न मानने वालों को काफिर कहता है। उसने अपनी जन्नत जहन्नम और अपनी इख्तराई चीजें गढ़ी हुई हैं। ये सारा का सारा सिलसिला हम अल्लाह के नबी के बाद किसी के लिए नहीं मानने को तैयार। और फिर हर चीज का कोई क्लेम करता है, उसके पास कोई सॉलिड रीजन होती है, कोई ऐसी चीज होती है, एक अकली तौर पर अगर सोचा जाए, अकली तौर पर हमारे पास किसी चीज का कोई रीजन होता है, कोई सबब होता है, कोई काबिलियत होती है, कोई ऐसी चीज होती है कि बंदा क्लेम करे कि मेरे अंदर ये सिफात आ चुकी हैं। एक हकीर आदमी, एक कह लें कि जिसे कह लें कि शराफत से आरी आदमी, एक हया से आरी आदमी और एक जो है वो शर्म से आरी आदमी, वो जो शराब का रसिया है, जो है वो औरतों का रसिया है, वो उठ के ये क्लेम करे कि मैं माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मैं नबी हूं। वो अपने आप के लिए दर्जा मुतय्यन करे, जिसका बचपन से लेकर मौत तक सारी जिंदगी जो है वो हेरा फेरियों में गुजरी हो, सारी जिंदगी उसने दांव में लगाई हो, सारी जिंदगी उसकी ऐसे कामों में गुजरी हो, वो उठ के क्लेम कर दे मैं नबी हूं। नबूवत तो अल्लाह ने ऐसा एजाज रखा है जिसको अल्लाह नबूवत के लिए चुन लेते हैं, उसकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह उसके इंतजामात शुरू कर देते हैं। वो मां के पेट में ही होता है तो उसके साथ वो ट्रीटमेंट जो है वो एज ए नबी जिस तरह होती है, उसकी तरबियत, उसका फिर पैदा होने के बाद उसका ब्राटअप, वो सारा का सारा अल्लाह के हुक्म से हो रहा होता है। उसका बचपना भी मासूमियत में होता है, उसका बचपना आम बचपने की तरह नहीं होता, उसका लड़कपन आम लड़कपन की तरह नहीं होता, उसका मिजाज आम लोगों के मिजाज जैसा नहीं होता, उसकी तबीयत में वो चीजें नहीं होती जो आम लोगों की चीजों में तबीयतों में होती है। उसकी जवानी पाक साफ होती है, उसकी जवानी बेदाग होती है, वो जाहिरी और बातिनी तौर पर बेऐब होता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसको कोई झूठा नहीं कह सकता, उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम तराशी नहीं कर सकता। ये अल्लाह तरबियत करते हैं जिसको अल्लाह ने नबूवत अता फरमानी होती है, जिसको अल्लाह ने ये एजाज देना होता है। तो ये एक ऐसा एजाज है जो गॉड गिफ्टेड है, मेरे आपके कसब से, मेरे आपकी मेहनत से, मेरे आपकी जो है वो एफर्ट से, कोशिश से, इबादत से और जो है वो मुताले से, स्टडी से या मेरी कोशिशों से ये नहीं मिल सकता। तो हमारा ईमान क्या है कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है। आप पर जो नाजिल हुई किताब वो आखिरी किताब है, कुरान करीम। आप पर जो नाजिल हुआ दीन वो आखिरी है, आपकी जो उम्मत है वो आखिरी है। आपके बाद न नबी कोई, न किताब कोई, न दीन कोई, न उम्मत कोई। अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में आखिरी, तुम उम्मतों में आखिरी। मैं उम्मतों में, मैं नबियों में, तुम उम्मतों में आखिरी, मेरे बाद उम्मत भी कोई नहीं। क़यामत तक जितने भी पैदा होते रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती। तो कुरान भी आखिरी किताब है। आपके बाद कोई कुरान ले आता है तो वो भी झूठा है, कोई नबूवत का क्लेम करे वो भी झूठा,
कोई कुरान किताब ले आए वो भी झूठी, कोई अपनी झूठी अपने फॉलोअर्स को अपनी उम्मत बनाए वो भी झूठे, वो भी काबिल गिरफ्त। तो ये लोग आईने पाकिस्तान कुरान की रूह से, शरीयत की रूह से वो तो वाजे और ऑब्वियस है, इसी तरह आईने पाकिस्तान के अंदर भी ये वाजे है कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और जो क्लेम करेगा वो मुजरिम होगा। और फिर दूसरी बात, अपने मजहब की तशहीर नहीं कर सकते आप, तो आप एज अ नबी किसी को बनाकर पेश करें कि ये हमारा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी है, ये हमारी अलग से किताब है, ये हमारा दीन है, ये हमारा इबादत खाना है। आप अपने मजहब की तालीम तबलीग तशहीर नहीं कर सकते, कानून ये भी जुर्म है। आप अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम नहीं दे सकते। जो खत्म नबूवत के बाद किसी नबी के मानने वाले हैं, उन लोगों की बात हो रही है। अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम नहीं दे सकते, अपनी इबादत गाह पर कलमा नहीं लिख सकते, अपनी जो है वो आप दीन की तबलीग नहीं कर सकते, अपनी किताब की तबलीग नहीं कर सकते। यह कानूनी जुर्म है। दीन इस्लाम में तो है ही है, कानून भी जुर्म है। तो यह कानूनी तौर पर लीगली जो है वो काबिल गिरफ्त है कि ये सारे के सारे मामलात इलीगल है। तो कानूनी लिहाज से तो ये जो रिसेंट एक वाकया हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। असल में हुआ ये था कि 2019 के अंदर एक पब्लिशर थे, उसने मिर्जाइयों की एक तफसीर वो पब्लिश की और उसको एक मखसूस इदारे में और कुछ लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको तकसीम किया। चिन्नौट की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 2023 की जनवरी में वो पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। और अभी जो है वो फरवरी में 6 फरवरी को दोबारा फिर उसके बाद फिर मुकदमा चलते रहे, सिविल में, सेशन में, हाई कोर्ट में, सब ने जो है उसको जमानत मुस्तरद करते रहे और बिल आखिर उन्होंने खटखटाया फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां पे उन्होंने केस किया तो 6 फरवरी को फैसला आया और वो उनकी जो है वो जमानत का फैसला आ गया। और उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि तौहीन कुरान का जो कानून था वो पास हुआ था 2021 में, 2021 में, और इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी अपने कुरान की वो की थी 2019 में। लिहाजा कानून बनने से पहले ये मामला हुआ है तो ये कानून इस पर अप्लाई नहीं होता, तो लिहाजा इसलिए इनको बरी कर दिया। जबकि असल रियलिटी ये है कि तौहीन कुरान का जो आईन है, ये जो शिक है, दफा 295 सी और 298 सी तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत, असल में तो ये 2011 का बना हुआ है। 2019 में एक तरमीम आई थी उसमें, बाकी कानून तो 2011 से बना हुआ है। 2011 से बना है कि जिसका सहारा लेकर आपने उस तरमीम का सहारा लेकर और उसको बरी कर दिया मिर्जाई को कि आप जाएं, आप बरी हैं। तो ये बेसिकली जजमेंट थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, हमारी सुप्रीम अदालत की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कि जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको एक मुस्लिम मुल्क के वो जो है वो ऑनरेबल जज हैं, काबिल इज्जत हैं, काबिल कदर हैं, उनको आईन और कानून के मुताबिक और अपने मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए और ऐसे मामलात में उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए। एक उलमा का जिस तरह जजेस का पैनल होता है, यहां पे भी दो जजेस का पैनल था, एक जस्टिस साहब थी और एक और जस्टिस थी, लेडीज थी, उनका नाम मुशर्रफ हलाली साहबा वो थी। तो ये 2 लोगों का था। तो इन्होंने ये फैसला दिया कि उलमा का आपको एक पैनल बुलाना चाहिए, वहां पे डिबेट करें, उनसे पूछे, रहनुमाई ले, ना ये कि बाद में उनका ये फिर जो उन्होंने रीजनिंग की कि जी ये कानून चूंकि 2021 में बना और ये केस 2019 का है तो लिहाजा इस पर अप्लाई नहीं होता, फारिग हो गया। वैसे अगर देखा जाए कई कानून ऐसे होते हैं जो बनते बाद में हैं, लेकिन उसको पहले जुर्मों पर भी अप्लाई कर दिया जाता है। पहले हमारे मुल्क में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो ऐसा अप्लाई किया जाता है, एक जुर्म पर उसको अप्लाई कर दिया जाता है।
तो बाद में फिर उन्होंने ये मामला हो गया, उसके बाद 6 फरवरी का फैसला है, जाहिर बात है ऐसा ऐसा फिर सोशल मीडिया पे फिर आता है, तो जैसे फिर हाईलाइट हुआ वो लोगों के सामने आया, फिर उसकी डिटेल सारी सामने आई, तो उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके नुमाइंदे ने की, उनके जो सेक्रेटरी थे, जो नाम पता नहीं क्या था, तो उन्होंने की और अपना दिया, उन्होंने यही रीजन दिया। और जस्टिस साहब ने जो है साथ में कुरानी आयात भी पढ़ी, जी वो एक मजहब है, वो एक दीन है, तो उनको उस पर अमल करना चाहिए, वो करते रहें, हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत है। और एक आयत कुरान की पढ़ी कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबर कोई नहीं, दीन के अंदर है जबर कोई नहीं है। तो बात यही है कि जब हम एक चीज समझते नहीं है और उसको फिर मिसकोट करते हैं, आप भले सुप्रीम कोर्ट के आप जज हैं, आप बड़ी आलीशान कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप जो है वो क्या कह सकते हैं, आप दरबारे आली आपका बड़ा ऊंचा है, सारा कुछ है, लेकिन आपको कुरान का नॉलेज जो है वो तो कुरान कहता है फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालम, वो तो आपको अहले इल्म से लेना होगा, उनकी राय मोतबर होगी, आपकी राय मोतबर नहीं होगी, आपकी राय मोतबर नहीं होगी। कि ला इकराह फिद्दीन जो आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ला इकराह फिद्दीन का मतलब ये नहीं है कि दीन में जबर नहीं है तो आप नमाज भी ना पढ़ो, रोजे भी ना रखो, ज़कात भी ना दो, हज भी ना करो, जिहाद क़िताल भी ना करो, कुछ भी ना करो। क्यों? ला इकराह फिद्दीन बिल्कुल मिसकोटेड है। ला इकराह फिद्दीन का मतलब क्या है? ला इकराह फिद्दीन का मतलब यह है कि दीन पर किसी को जोर जबरदस्ती करके दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता। आप किसी को गन पॉइंट पर कहें कि कलमा पढ़ और दीन इस्लाम कबूल कर, ये इस्लाम ने मना किया है। आप किसी ईसाई की जो है वो कनपटी पे गन रखते हैं कि कलमा पढ़ो वगैरह आपको गोली मारूंगा, आप नहीं कर सकते। किसी हिंदू को नहीं कर सकते, किसी जो है वो सिख को नहीं कर सकते, किसी यहूदी को नहीं कर सकते कि आप गन पॉइंट पे कहें कलमा पढ़ो अगर मैं आपकी जान लूंगा। आपको ला इकराह फिद्दीन ये है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। मुफस्सिरीन ने इसकी जब एक तफसीर की है, ला इकराह फिद्दीन ए अलद दीन, के दीन के ऊपर जो है वो जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती कबूल करवाया जाए। बाकी जब दीन में दाखिल हो गए तो दीन में जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। अब बच्चा छोटा है, हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का कहो, उसको नमाज का कहो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको हल्का हल्का मारो भी सही। ये जबरदस्ती है, तो उसको फोर्स करो तो वो नमाज पढ़े, ये जबरदस्ती है। आप अगर रमजान आ गया, सही तंदुरुस्त सही सलामत है, इस्लाम हुक्म देता है आप रोजा रखो। आप मुसलमान हैं, शराब पीते हैं, शरीयत कहते हैं इनको कोड़े लगाओ। जानी है, मुसलमान है, जानी है, जिना करते हैं, शरीयत कहते हैं अगर शादीशुदा इसको पत्थर मार मार के इसको संसार कर दो, हलाक कर दो, और अगर गैर शादीशुदा इसको 100 कोड़े लगाओ। ये जबरदस्ती है, ऐसा नहीं है। और ये हर चीज में होती है। हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे ऊपर कानून अप्लाई नहीं होते, हमारे पर जबरदस्तियां नहीं है, हमारे पास रूल नहीं बने हुए, कानून नहीं बने हुए, रोड पर चलने के कानून नहीं है, इदारों के कानून नहीं है, जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें कोई रूल नहीं है, सब में रूल अप्लाई होते हैं। जबरदस्ती होती है कि आप इनको फॉलो करें, आप इनको फॉलो करें। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी जेब में लाइसेंस होना चाहिए। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको वन में नहीं जाना। आप मोटरसाइकिल पे आपको हेलमेट पहनना है, जबरदस्ती है, कानून है, आप इसके खिलाफ करेंगे, आप सिग्नल तोड़ेंगे, जबरदस्ती है, आप तोड़ गए तो आपको जो है जुर्माना होगा, जबरदस्ती है। जब आप एक लीगल या किसी चीज के सर्कल में आ चुके हैं, आपके ऊपर वहां के कानून अप्लाई होते हैं। आप किसी स्टेट में चले जाएं, जब उसमें एंटर हो जाएंगे उसके सारे रूल आप पर अप्लाई होंगे, आप पाबंद होंगे। तो दीन पर जब तक आप कहीं आते नहीं, आप पाकिस्तान में नहीं है तो आप पर पाकिस्तान के कानून लागू नहीं है। आप किसी बाहर की कंट्री में मुल्क में नहीं जाते, आप पर कानून लागू नहीं है। लेकिन जब आप किसी मुल्क में एंटर हो जाते हैं, एयरपोर्ट से ही वहां के कानून शुरू हो जाते हैं, और जब तक आप निकलते नहीं आप उनके कानून को फॉलो करेंगे। इस्लाम भी इसी तरह है, आप दायरे इस्लाम में नहीं, आप जो मर्जी करते फिरें। गैर मुस्लिम है उसके लिए शराब पिए, जो मर्जी करे, इस्लाम उसको कुछ नहीं कहता, जो मर्जी करता। फिर इस्लाम में दाखिल हो गया, अब शराब पिएगा तो कोड़े लगेंगे, अब जिना करेगा तो कोड़े लगेंगे, संसार किया जाएगा, जबरदस्ती है। कुरान कहता है अगर पैसे हैं, माल दौलत है, जबरदस्ती है, ज़कात अदा करो। इस्लामी स्टेट हो, रियासत हो, ज़कात ना देने पर तुम मुजरिम बनोगे। पैसे हैं, इस्तिताअत है, हज फर्ज है, हज करो, तुम्हारे ऊपर शरीयत कहती है जरूरी है, जबरदस्ती है।
तो ये इंटरप्रिटेशन करना जी ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, लिहाजा ये तो फिर मतलब हुआ नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो, रमजान में एलानिया खाते फिरो, हालांकि हमारे कानून है रमजान में आप ओपनली खा नहीं सकते, तो ये क्या है, जबरदस्ती नहीं है। एक सिस्टम को चलाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है, ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। निजाम को चलाने के लिए कवानीन बनाने पड़ते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। ये सिर्फ दीन नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है। तो ये कहना जी ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीन में दाखिल हो गए फिर जबरदस्ती है, दाखिल नहीं हुए फिर तुम आजाद हो। लिहाजा ये कहना जी मिर्जाई अपनी तबलीग करते फिरें, अपने कुरान छापते फिरें, और इसका मतलब क्या है, हमारे कुरान को वो डिग्रेड कर रहे हैं, उनको जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं, कुरान के मुकाबले में कुरान की तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस एक बड़ा ओहदा है, चीफ जस्टिस एक बड़ा नाम है, चीफ जस्टिस एक इज्जत वाला नाम है। अगर आप किसी गधे के ऊपर लिख दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो क्या कंडेम ऑफ कोर्ट नहीं होगा? क्या आपने तौहीन की है इस ओहदे की, एक तौहीन की है इस नाम की, तौहीन की है कि आपने एक गधे के ऊपर जो है ये नाम लिख दिया। ये कानून की, अदालत की तौहीन है, तौहीन अदालत के जुमरे में आता है कि इतने बड़े मनसब को आपने इसके साथ मिला दिया। तो इसी तरह बिल्कुल खत्म नबूवत एक ओहदा है जिसको आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे लगा के नबूवत की तौहीन कर रहे हैं। आप मिर्जा को खत्म नबूवत देते हैं, उसको नबूवत देते हैं, उसकी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत क्या है? वो है क्या है? हैसियत देखी जाती है दुनिया में। आप देखें ना, जितना कोई भी किसी का कोई ट्रेडमार्क, किसी का कोई नाम, किसी की कोई चीज छीन लेता है तो ये जुर्म है। किसी का यूनिफॉर्म का मिसयूज करता है, जुर्म है। किसी को ओहदे का मिसयूज करता है, जुर्म है। आप एक यूनिफॉर्म पहन के आप पुलिस वाले बन के रोड पे खड़े हो जाते हैं तो ये कानूनी जुर्म है, आप इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक दीन इस्लाम और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की नबूवत पर डाका है कि वो आप उनसे नबूवत छीन कर आप करें जी मैं नबी हूं। और ये कुरान करीम के तकद्दुस की पामाली है कि ये कुरान करीम, उसके मुकाबले में ये कुरान है, उसके मुकाबले में ये दीन है, उसके मुकाबले में ये नबी है, उसके मुकाबले में ये उम्मती है। ये उम्मत की भी तौहीन है, कुरान की भी तौहीन है, नबी की भी तौहीन है, दीन की भी तौहीन है। तो लिहाजा जो ऐसे लोग हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, उनका इस्लाम से, और इनका दर्जा बल्कि आम काफिरों से बुरा है। ये आम, ये मुल्हिद और जिंदीक के दर्जे में आते हैं, मुल्हिद और जिंदीक के दर्जे में। आम काफिर का हुक्म यह है कि उसका जब बच्चा पैदा होता है उस पर एक नॉर्मल जो फितरत पर बच्चा पैदा होता है उसका हुक्म होता है, लेकिन मिर्जाई का जो बच्चा भी पैदा होता है, नस्ल भी पैदा होती है, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को रास्ते देना और खुद से ऐसी तावीलें करना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान अल्लाह कहता कुरान हमने नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। उसका क्या मतलब है? आप उम्मत कुछ भी ना करे, अल्लाह ने हिफाजत किस लिए करवानी है? मेरे आपसे करवानी है। अभी रमजान आ रहा है, आप देखेंगे मस्जिदों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में और हर छोटी बड़ी जगह पर, छतों पर और हर जगह बच्चे, मासूम, बड़े, बूढ़े सारे कुरान करीम पढ़ रहे होंगे, सुना रहे होंगे। हर कोई आपको पढ़ता, सुनाता नजर आएगा। ये कुरान की हिफाजत है, अल्लाह मेरे आपके जरिए करवा रहे हैं। तो ये आज पढ़ना जी अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो अल्लाह ने मेरे आपसे करवाना है। तो ये कहना काफी नहीं है। अगर दीन, तो दीन भी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, इसका क्या मतलब है? दीन में जो मर्जी रखने डालता रहे। फिर अल्लाह ने नबियों को क्यों भेजा? नबियों ने पत्थर क्यों खाए? नबी आके जो है अपनी जान क्यों दी? नबियों ने अपनी जो है वो इस्मतें क्यों तार करवाई? नबियों ने बातें क्यों सुनी? गालियां क्यों सुनी? नबियों को क्यों जो है वो मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया? अगर दीन अल्लाह ने हिफाजत करनी थी तो अल्लाह खुद कर लेता। कुरान अल्लाह ने हिफाजत अल्लाह ही कर रहे हैं, लेकिन जरिया तो कौन है? जरिया तो मैं और आप है। तो ये कहना, ये एक इतने जो है वो बड़े आदमी को जेब नहीं देता। लिहाजा अपनी हुदूद में रहना चाहिए, हर एक को अपना काम अपनी डोमेन में रह के करते रहना चाहिए। जो बंदा अपना काम अपनी हद में रह के करता है वो अच्छा होता है, वगरना फिसल जाता है, वो फिसल जाता है। तो इसलिए आप काबिल कदर हैं, आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं, लेकिन खुदारा जो है वो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। एक अपना लीडर है, आप देख लेना, जिसके लीडर को सजा होती है वो सजा मानते नहीं। भले सुप्रीम कोर्ट दे दे, कोई दे, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते।
हम नहीं मानते ये, भले ठीक भी हो, कहते गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, जज गलत है, उस पर तोहमतें इल्जाम शुरू हो जाती हैं। आप कुरान पे इल्जाम लगाते फिर कोई ना पूछे, नबी पे इल्जाम लगाते रहे कोई ना पूछे, आप जो मर्जी करते कोई ना पूछे। तो इसलिए चीजें हमें जेब नहीं देती। बतौर मुस्लिम हमें चीजें, हमें तो मुसलमान का साथ देना चाहिए, हमें मुसलमान का साथ देना चाहिए, कुरान को देखना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए, हमें अपने दीन को देखना चाहिए। खुदारा बाकी शरीयत ने जो उन्हें हक दिए हैं वो ठीक है, उन हक पे रहें, लेकिन दीन में रखने डालने की शरीयत ने किसी को इजाजत नहीं दी, इजाजत किसी को नहीं। तो इसलिए हमारे मद्देनजर हमारा दीन होना चाहिए, कोई और नहीं। किसी को खुश करने के लिए हम ऐसा ना करें, खुदारा किसी को खुश करने के लिए ऐसा ना करें, अपनी आकबत बर्बाद ना करें। कितने दिन रहेंगे कुर्सी पर, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं कौन था बंदा, कहां था, चलने फिरने के भी काबिल नहीं होगा, लिखने के भी काबिल नहीं होगा, खाने के भी काबिल नहीं होगा, चलने के भी काबिल नहीं होगा, देखने के भी काबिल नहीं होगा, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई सलाम भी नहीं करेगा, कोई करीब से भी नहीं गुजरेगा, कौन चीफ, कौन जस्टिस, कौन फला, कोई नहीं माने जानेगा, चंद दिन की बात है। तो क्यों ना हम ऐसी तारीख रकम करके जाएं कि लोग अच्छे नाम से याद करें। हम खत्म नबूवत के जो है वो कम से कम अगर हक में नहीं जा सकते, उसके हक में कोई नहीं कर सकते, तो कम से कम खिलाफ भी ना जाएं, खिलाफ भी ना जाएं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद प्यारे पैगंबर हैं, उसके बाद हमारा दीन है, यही हमारा सरमाया। अगर ये भी छिन जाता है तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश ये है कि इन चीजों को समझना चाहिए, हर चीज को मसलकी या फलाने इख्तलाफात कह के इग्नोर नहीं करना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए, अपने दीन को समझें, अपने कुरान को समझें। और ये हमारी ही गफलत का नतीजा है कि हमने ना कुरान पढ़ा है ना समझा है, जो होता रहे हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सबको कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल की तौफीक अता फरमाए।